औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? 7th क्लास की इंग्लिश अंग्रेज़ी का आपको हलशुदा गेस्ट पेपर लिखवाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल समझा के आपको हल कराऊँगा। ये पेपर आपके एनुअल एग्ज़ाम में मिड टर्म एसबीए में आ सकता है। इसी पेपर को आपने तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह आपका पूरे का पूरा पेपर इसी में से आएगा। इसी को आपने अच्छे तरीके से अगर याद कर लिया तो आप पूरे नंबर ले लेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी ज़रूर करना है, कमेंट्स करने हैं और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को भी कहना है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो आपकी पढ़ाई में इतनी आसानी होगी कि तमाम चीज़ें आपको आपकी स्टडी से रेलेवेंट आसान तरीके से बिल्कुल समझाई हुई आपके पास मिलेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑप्शन ए आपका ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। फाल फाल होमोग्राफ्स क्या होते हैं जिनके स्पेलिंग एक हो लेकिन मानी डिफरेंट देनी चाहिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे द आएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द हाउस हैज अ बिग लॉन। ये आएगा। चूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। हुक्मिया जुमला। क्लीन द रूम। कमरा साफ करो। आइडेंटिफाई द सफिक्स फॉर वर्ड स्मूथ। स्मूथली होता है, क्या होता है वर्ड स्मूथली, तो एल वाई आएगा इसके साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। फॉल फॉल। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस हैविंग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। शी गॉट हर ड्रीम जॉब फाइनली। चूज द इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हेल्प द नीडी पीपल। गरीबों की मदद करें। विच वर्ड with facts means bring generous kindness. Kindness. Identify definite article in the following. This is the book which is masterpiece of an abstract artwork. The इसके साथ क्या आएगा? द जो है ना इसका डेफिनेट आर्टिकल आएगा। आइडेंटिफाई करेक्ट syllabic division of helicopter repeated है। Choose the correct pair of homograph left left. Which sentence has attributive adjective? The big house is on the hill. Choose the imperative sentence from the following. Don't use mobile phone while driving on the road. आगे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पोएम दी जाएगी। In colors bold, our flag does fly. The green its speak of bravery's might. तो ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन दिए गए होंगे। What does the green color represent in the poem Bravery? What is the significance of the flag mentioned in the poem? It stands for a noble creed. What is the tone of the poem? Proud. What is the central idea of the poem? The bravery and sacrifice of those who fought for their nation's ideals. जी आगे आइडेंटिफाई करो correct syllabic division of alligator. Then alligator. A. Choose the correct pair of homographs. Lead lead. The earth revolves around the sun. Which sentence has the attributive adjective the big house is on the hill? Choose the imperative sentence from the help the needy people. Suffix word smoothly. These are the repetitive questions. And that is the poem paragraph about honesty. You have to read it carefully and then answer the given questions. The questions answers may be: what is the foundation of the trust and respect? Honesty. What does the author suggest about the honesty? It is rare. What is the tone of the poem? Motivational. What is the main idea of the poem? Honesty is an essential quality. Identify correct syllable repeated question. Choose the correct pair of homographs. Swear, swear. Put the correct article on the blank. This is the book which I like the most. Which sentence has the attributive adjective? That is the repeated question. Imperative sentence, repeated question. Which suffix can be added to the word lovely? Lovely hota hai. Lovely. Then you have to read the poem and paragraph that is about kindness.
Read it carefully and understand what is the poet saying in it, and then answer the questions. The question may be, what is the main idea of the poem to encourage the reader to be kind, true, and enjoy life? What is the meaning of the phrase, be happy, be joyful, and have fun? You should try to find happiness. What should you do if you want to achieve your dreams? Believe in yourself and your dreams. What is the tone of the poem? Positive. Then another poem or paragraph can be about life lessons. You have to read it carefully and understand, then answer the given questions. The questions are, what is the theme of the poem? Learn something from past experience. Why are life lessons so precious according to the poem? They enhance our experience. What do you understand by don't get signals mixed? Don't get confused in taking decisions. What is the tone of the poem? Motivational. Then you have to योर सब्जेक्टिव पेपर आपका इंशाया हिस्सा जिसको अपने शीट पे हल करना है इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन यूज करेक्ट ग्रामर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन आपने ये दिया गया पैराग्राफ है इसको गौर से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके ये सवाल दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 5 तो आपने इसके आंसर्स देने हैं अब हमारे पास जो पहला पैराग्राफ आ सकता है paragraph away. A young boy named Zan loves to paint, but he feels his drawings are never as good as he wants them to be. One day, he finds an old paintbrush in his room that seems different from the others. When he starts to paint with it, the pictures comes to life. Zan paints a rainbow that stretches across the sky, butterflies that flutters out of the canvas, and a tree that grows right before him. तो ये पूरा पैरा आपने पढ़ लेना है कंप्लीटली पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दीज आर द क्वेश्चन व्हाई डज Zen feel unhappy with his drawing? What special object does Zen finds in his room? What happens when Zen paints with the old paintbrush? List the things Zen paints with the magic brush. What lesson does Zen learns when the magic of the paintbrush runs out? एंड देयर आर द आंसर्स ये उसके जवाबात आपको लिखवा दिए गए हैं ही फील्स हिज ड्राइंग पहले सवाल का जवाब होगा क्वेश्चन वन का आंसर है ही फील हिज ड्राइंग्स आर नॉट एज गुड एज ही वांट्स टू देम टू बी ये इसी में से है आपने इसको ढूंढना है ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ही फाइंड्स एन ओल्ड पेंट ब्रश दैट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ये पूरे उनके आंसर्स भी आपको लिखवा दिए हैं ये आपने गौर से देख लेना है इनको पढ़ लेना है ये नेक्स्ट पैरा हमारे पास हो सकता है ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कैसे ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रही है अर्थ को चेंज कर रही है तो ये पूरा पैरा आपने पढ़ना है our earth is like a big house we will all share and it's going through some changes the changes are called environmental changes one important change is the earth getting warmer which we call global warming then you have to read the whole paragraph carefully and the questions also then you have to find its answer and the answers are given here ये इसके जवाब दिए गए हैं इसको आपने गौर से देख लेना याद कर लेना है then another paragraph can be of an old wise old man a wise old man lived in a village one day a young boy came to him seeking advice on how to become the happiest person in the village the old man smiled and said, visit every household. Then you have to read the whole paragraph carefully and the question. Then you have to find the answers within the it, and you can find the answers are written here below. ये नीचे उसके जवाब दिए गए हैं इनको आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से याद करना है कहीं समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कांटेक्ट कर लीजिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो होता है given below is a paragraph full of errors there may be spelling punctuation capitalization or grammatical errors rewrite the paragraph correcting all the errors आपको एक नीचे पैराग्राफ दिया गया है वो कहता है ये फुल ऑफ एरर्स है गलतियों से भरा पड़ा है इसमें स्पेलिंग की पंक्चुएशन की कैपिटलाइजेशन की ग्रामर की गलतियां हैं आपने इसको तमाम को ठीक करके फिर से लिखना है तो देखिए आपका पैरा है honesty implies being truthful honesty means to develop a practice of speaking truth throughout life इस तरह आपने पूरा पैरा ये पढ़ना है
अब इसको ठीक करके लिखना है, तो ठीक करके मैंने यहाँ पे आपको नीचे लिखवा दिया है, आपने इसको देख लेना है। ऑनेस्टी इम्प्लाइज बीइंग ट्रुथफुल। अब यहाँ देखिए ट्रुथफुल में एच नहीं था, यहाँ पे आ गया। ऑनेस्टी मीन्स टू डिवेलप, यहाँ पे देखें डिवेल्प्ड था। अ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ थ्रू आउट लाइफ, एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे क्या था, पर्सन में देखे पर्सन के स्पेलिंग गलत थे, समझ आ रही है ना। तो ये पूरे का पूरा पैरा आपको ठीक करा के कहाँ पे पंक्चुएशन की गलती थी, कहीं पे स्पेलिंग की गलती थी, कहीं पे ग्रामर की, वो सारी ठीक करा दी। उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है, याद करना है। जी, नेक्स्ट पैरा हमारे पास हो सकता है, आजाद कश्मीर इज आल्सो ब्लेस्ड विद अ वेरी माउंटेनियस लैंड। अब यहाँ पे माउंटेनियस के स्पेलिंग गलत है, तो ये इसको ठीक करके मैंने सारा आपको सेट करा दिया है। इसको आपने देख लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या गलती है, समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। जी, आगे हमारे पास इस तरह एक और पैरा, अ हंग्री पर्सन कैन स्टे विदाउट ईटिंग फूड बट अ थर्स्टी वन कैन नॉट गो ऑन विदाउट वाटर, सिंस लिविंग विदाउट फ्लूइड्स इज इम्पॉसिबल। आगे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय कॉमा लगा हुआ है, तो ये पूरे का पूरा आपको ठीक करके लिखवा दिया है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे स्पेलिंग की गलती है, कौन सा बड़ा लिखना है, कौन सा छोटा लिखना है, तो ये सारे का सारा आपको पैराग्राफ लिखवा दिया है। मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, सारा कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने के लिए कि आपकी वीडियो मुख्तसर रहे, इतनी बड़ी ना हो, तो इसलिए इसको शॉर्ट कर रहे हैं। आगे जो आपका एक सवाल आएगा लास्ट वाला, वो होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग मार्क्स होंगे। आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर आपने उसके बारे में सुनना भी है, बताना भी है, ठीक है ना? और पढ़ना भी केयरफुली है। तो ये जो नमूने के सैंपल्स हैं, कुछ मैं आपको बता सकता हूँ कौन-कौन से आ सकते हैं। आपके पास लिसनिंग हिंट्स फॉर प्रोफेशन 1 आ सकता है। आई हेल्प पीपल इन लीगल इश्यूज, आई फाइट केसेस फॉर आई फाइट केसेस फॉर अदर्स, माय वर्क इज इन कोर्ट, आई वियर ब्लैक कोट। तो ये हमें समझ आ रहा है कि क्या है। तो इसका जो देखिए आंसर होगा वो क्या है, इसका नाम है लायर। ये लायर होगा, वकील होगा। और इसके लिए आपने स्पीकिंग क्या करनी है, आई वर्क इन कोर्ट, आई हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस। अब हमारे पास प्रोफेशन 2 है, आई वर्क विद डिफरेंट कलर्स ऑफ पॉलिश, आई वर्क विद थ्रेड एंड अ बिग नीडल, आई मेंड टॉर्न शूज, माय नेम स्टार्ट विद सी। तो हमें समझ आ रही है कॉबलर है, प्रोफेशन 2 क्या है, कॉबलर। जो पॉलिश भी करता है, उसके पास एक धागा होता है और बड़ी सुई होती है, वो फटे जूतों को मुरम्मत करता है, उसका नाम सी से शुरू होता है, कॉबलर, मोची। और इसका आप आंसर स्पीकिंग में कैसे, आई एम अ कॉबलर, आई मेंड शूज। प्रोफेशन 3 हमारे पास, आई लिव इन विलेज, आई एंजॉय नो हॉलीडे, आई वर्क इन फील्ड्स, आई ग्रो क्रॉप्स। ये किसान हो सकता है, हाँ जी, इसका आंसर है फार्मर। और इसमें स्पीकर, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आई गिव यू फ्रेश वेजिटेबल एंड क्रॉप्स। My work is related to the road. I take people to their destination. I drive vehicles. My name start with D. समझे, my work is related to the road. मेरा काम सड़क के साथ है, मैं लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाता हूँ, मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ, मेरा नाम डी से जुड़ा। तो डी क्या होता है, ड्राइवर। ये कौन है, ड्राइवर। I drive the cars, buses, etc. I take people to their desired places. इस तरह एक और हो सकता है, my name start with the letter P. I deal with colors and pictures. I work with camera. I click photos. तो कौन है ये, फोटोग्राफर। I take pictures. I make events memorable. My name start with P. I fly like a bird. I take my passenger to destination. You can see in my me in airplane. तो ये कौन है जिसका नाम पी से शुरू होता है, वो परिंदों की तरह उड़ता है, अपने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ले जाता है, और वो आप उसे उसके जहाज में देख सकते हैं। तो दैट इज पैलेट। My job is flying aircraft. I help people to fly up in the sky. My name starts with the letter R. I keep you informed about the news. You can see mic in my hand. You can see me on TV. तो ये कौन है, रिपोर्टर। I give recent update to society. I work for a news channel. My name starts with T. I have a measuring tape. I have a machine, needles and scissors in my shop. I sew clothes. मेरा नाम टी से शुरू होता है। मैं टेप, मेरे पास एक पैमाइश वाली टेप होती है, मेरे पास एक मशीन होती है, सुइयाँ होती हैं, कैंचियाँ होती हैं मेरी दुकान में, और मैं कपड़े सीता हूँ। तो कौन होगा, दर्जी, टेलर। आई एम अ टेलर, आई वर्क ऑन अ सीविंग मशीन। जी, एक और प्रोफेशन है, यू कैन सी मी इन स्कूल, आई यूज रेड पेन, आई टीच इन स्कूल, आई हैव बोर्ड मार्कर। ये कौन होता है जो स्कूल में दिखाई देता है, उसके पास रेड पेंसिल होती है, वो स्कूल में पढ़ाता है, और उसके पास बोर्ड मार्कर होता है। यस, दैट इज द टीचर। आई वर्क इन स्कूल, यू कैन आस्क माई क्वेश्चंस।
I'm a handyman. You can see me near water pipes. I can fix running taps. My name starts with P. तो ये कौन है? प्लम्बर. I'm a plumber. I come to your house with the tools. I work in the laboratory. You can see me with chemicals. I can invent different things. I deal with science. तो कौन है? Scientist. साइंसदान है जो आपको लिबा. I am proud. You use me, my inventions. I am proud of my profession. My work is with wood. You can see me with a handsaw. I can make furniture. My name starts with C. इसको carpenter है, मिस्त्री. I make chairs and tables. My work is very tiring. G. I wear white coat. I can cure people. People come to me with health issues. My name starts with D. तो ये कौन है? Doctor. I work in hospital. People call me a doctor. I deal with meat. I have many knives. I wear a apron. I cut the meat. कौन है? Butcher, kasai. I sell meat. People buy fresh meat from me. G. I have tools like drills. I do construction. I can do the digging. I can carry heavy loads. Labor. I can help mending. I can mix the cement. I have lights. I can film anything. I have a camera. I make people do poses. That is photographer. Capture pictures. I can save your memories. तो ये जनाब ये आपका क्वेश्चन पेपर था. आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, तैयार करना. इंशाल्लाह इसी में से आपका पूरा पेपर आएगा और इसी में से आपने पूरे पूरे नंबर लेने हैं. तो अपना ख्याल कीजिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स करने हैं, हौसला अफजाई करनी. बड़ी मुश्किल से मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए बनते हैं. और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है. अपने दोस्तों को भी कहना है कि वो भी सब्सक्राइब करें. तब तक अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए. तब तक अल्लाह हाफिज़.